So please put the heading in your copies. Analysis, better to say, classified analysis of the items in trial balance. Classified analysis of the items in trial balance. Why are we doing this? You will come to know in a couple of minutes. Draw the format of trial balance, children, as we used to draw it earlier. And we have a particulars column, which was called as head of account as well. We have a column indicating what is known as debit balance. And we have a column indicating called as credit balance. Though we have a column for LF, that is ledger folio as well, but that certainly remains blank. इसलिए हम उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे. So we'll put here heads of account. Then we'll write LF. Then we write debit balance. And we write credit balance. Be very quick to this. Yes, sir. So children, we have 5 type of items in trial balance, if I am not mistaken. It's assets, it's liabilities, and capital, followed by what is known as expenses and incomes, or you can say income and expenses. Correct, children? Yes. The value of assets appear in the debit balance column, that of liability and capital in the credit balance, expense on the debit and income on the credit. Is that understood well by all? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? चलिए, be quick to this, children. Be quick. So हमने अब ट्रायल बैलेंस का एनालिसिस करना स्टार्ट करना है. बहुत ध्यान से सुनिएगा. चिल्ड्रन, कैपिटल के तो टाइप्स होते ही नहीं है. इट इज ओनली ऑफ वन टाइप. असेट्स के मेजर 2 टाइप्स होते हैं. वन इज नॉन करंट असेट्स एंड अदर इज करंट असेट्स. एंड व्हेन वी डिसाइड टू क्लासिफाई लायबिलिटी, चिल्ड्रन, we classify it, capital itself is a liability. Correct? Yes, yes. Thereafter in the category we have non-current liabilities and current liabilities. सबको ये बात समझ में आ गई? Yes. अब एक्सपेंसेस और इनकम्स का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, और यही क्लासिफिकेशन, चिल्ड्रन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देने वाला है. So let us decide how to classify expenses and incomes. सुनाई पड़ी है बात सबको? रेडी एवरीबॉडी? चलिए. चिल्ड्रन, जब हम एक्सपेंसेस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, we mean to say that there are 2 type of expenses. टेक्निकली तो मैं नहीं बोलूंगा, पहले मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं. Expenses spent up till buying and expenses spent after buying. सबको ये 2 कैटेगरीज नजर आ रही है. Up till buying, whatsoever expenses
we happen to do children, I repeat, up till buying, हम जो भी expenses करते हैं children, they are titled as direct expenses. I repeat, they are called as direct expenses. And after buying, आप जो भी पैसे spend करेंगे children, it is called as indirect expenses. तो technically expenses दो तरह के होते हैं, one is direct, other is indirect. I take an example that this is the factory located somewhere in New Delhi. The goods are manufactured in the factory children, and then they are transported to your godown or children to your shop. Name of your business is ABC Enterprises, and thereafter you happen to sell them in the market. सबको इतनी बात समझ में आ गई? Children heard this much well? So all expenses that are incurred up till your shop or godown children are called as what? Direct expenses. Once goods approach to your shop, to your godown, and you happen to deliver them to the market, you spend some money on storing the goods, you spend some money on paying rent of your shop or godown, you spend some money for paying salary to your employees, all after the green box. After the green box, we call such expenses as indirect. So suppose wheresoever you are sitting, say your chair or anywhere children, वहां तक गुड्स आने पे जो भी पैसा खर्च हुआ, इट्स डायरेक्ट. अपने आप को एक शॉप मान लीजिए, एक ऑफिस मान लीजिए, प्लस आपका रिपेयर मेंटेनेंस और आपके आगे गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने में व्हाटसोएवर इज बीइंग स्पेंट, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, एनीथिंग, वी कैटेगराइज इट एज व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया? अप टिल द थ्रेशोल्ड ऑफ योर गोडाउन और शॉप, गोडाउन या शॉप की चौखट तक गुड्स आने में जो भी पैसे खर्च हुए, इट इज टाइटल्ड एज डायरेक्ट. एक बार गुड्स आपकी शॉप पे या गोडाउन में एंटर हो गए, अब कौन से एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो आप अपने घर को अपना ऑफिस मान लीजिए, वहां तक गुड्स कहीं से भी आए, दुनिया के किसी कोने से, वहां तक का एक्सपेंस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस. देयर आफ्टर शॉप के, ऑफिस के अंदर और उसके बाद, इट इज ऑल इनडायरेक्ट. Suppose you have to go during this winter vacation with your family to Switzerland. समझ में आ गया? स्विट्जरलैंड को शॉप मान लीजिए. स्विट्जरलैंड तक जाने का सारा खर्चा क्या होगा? एक बार स्विट्जरलैंड एयरपोर्ट से आप बाहर निकले, स्विट्जरलैंड पूरा का पूरा और प्लस वहां की मार्केट, एनीथिंग चिल्ड्रन, इज कॉल्ड एज व्हाट? सो दिस स्केच इज अंडरस्टूड बाय ऑल. पक्का? इसको जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, बड़े काम की चीज है. Direct expenses children are further classified in two categories. कौन सी दो कैटेगरीज? सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. Buying of goods and expenses on buying of goods. Goods itself और उसको खरीदने पे जो पैसे खर्च हुए, carriage inward, freight inward, import duty, all this will be called as a direct expense. सुनाई पड़ गई बात? Indirect expenses children are classified under 4 different categories. ये कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? I let you know. सबसे पहली कैटेगरी जो बच्चों आपको इसमें नजर आएगी, इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ये वो एक्सपेंसेस होते हैं विच इंक्रीजेस with the increase in the intensity of business activities and decreases with the decrease in the intensity of business activities. Like you can say, अगर आप शोरूम ज्यादा आवर्स तक ऑपरेट करोगे चिल्ड्रन,
तो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वुड बी मोर और लेस, सिंपल एज दैट. If you hire a big area for your showroom children, you need to spend more rental charges or not? If you engage more staff to make more sales, you need to pay more salaries. बात समझ में आ रही है? So business की एक्टिविटीज के बढ़ने से जो खर्चा बढ़ जाए और बिजनेस की एक्टिविटीज के कम होने से जो खर्चा कम हो जाए, इट्स ऑपरेटिंग. टिल नाउ यू वर रनिंग अ कैफेटेरिया, आप सिर्फ जूस और कोल्ड ड्रिंक बेचते थे बस. अब आपने सोचा थोड़ा स्नैक्स, थोड़ा चाइनीज फूड, थोड़ा सा मोमोज, थोड़ा सा कचौड़ी वचौड़ी बेचने लग जाते हैं. तो इन सब चीजों को खरीदना, इनका सेल्स प्रमोशन करना, इनके लिए कुक लेके आना, इनके लिए मैनेजर अलग से बैठाना. बिजनेस बढ़ रहा है, आपको मैनेज करने के लोग चाहिए, जगह और बड़ी करना, किराया ज्यादा देना पड़ेगा. होम डिलीवरी भी आपने चालू कर दी अपने खाने पीने के सामान की, पैकिंग चार्जेस. तो बिजनेस आपका बढ़ेगा तो दीज एक्सपेंसेस वुड सर्टेनली इंक्रीज. अब आपने सोचा कि अब एकदम मोक्ष की प्राप्ति, सिर्फ लाई चना बेचेंगे कल से और कुछ नहीं बेचेंगे, तो आपको बिजनेस छोटा हो गया, तो आपके खर्चे भी कम. दीज आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सबको इतनी बात समझ में आ गई? इन एक्सपेंसेस को चिल्ड्रन फर्दर दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है. इट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ऑफिस एम्प्लॉइज की सैलरी, their refreshment, electricity, printing and stationery. Logic समझ में आ गया? Bonus to the office employees. These all are office and administrative expenses. Salesman की salary, salesman का commission, delivery van के खर्चे, bonus to the sales staff, advertisement, publicity charges, carriage outward. These all are categorized as selling and distribution expenses. These two categories are well understood? Children, well understood? बिजनेस चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बैंक में अगर आपने अकाउंट ओपन किया और आप बैंक से बोलो प्लीज गिव अस अ चेकबुक, अ क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड, और बैंक कह रहा है ठीक है हम रेंट लेंगे आपसे इसका. सो चिल्ड्रन, इज इट सो कि मुकेश अंबानी का बिजनेस बड़ा है तो उनको एक चेक लीफ के लिए 1 लाख रुपए देने हैं? आपका बिजनेस छोटा है तो आपको एक चेक लीफ के लिए 2000 रुपए देने हैं? एब्सोल्युटली नॉट. दीज चार्जेस रिमेन सेम. एटीएम कार्ड चार्जेस, चाहे 1 करोड़ रुपए एनुअल सेल हो, चाहे 10 लाख रुपए एनुअल सेल हो, 118 रुपए सबको देने होते हैं. 100 रुपए कार्ड के चार्जेस, 18% जीएसटी. सो इन एक्सपेंसेस का क्या आपकी बिजनेस की फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क पड़ेगा? 10 करोड़ का लोन आपने भी लिया, मैंने भी लिया, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को देना है, इररिस्पेक्टिव टर्नओवर आपके बिजनेस का 100 लाख रुपए और मेरा 90 लाख रुपए. These expenses are not affected with the intensity of business activities. That's why we call them as what? Non-operating expenses. और इन expenses की प्रजाति को हम बोलते हैं बच्चों financial expenses. What? इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? Confirm? चलिए, as promised, 4 categories मैंने बताई थी. चलो, the third category, you are using your assets and definitely किसी भी asset ने अमृत नहीं पिया हुआ है, एक ना एक दिन तो wear and tear होना ही होना है. So children, assets are going to reduce in value due to its usage. Yes or no? Yes or no? Use करेंगे, passage of time होगा. क्या बोलते हैं इस तरह के लॉस को हम? Depreciation. When we charge depreciation on assets, children, does any cash moves out? We call them as non-cash items. भाई बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, पेरेंट्स के ऊपर आने वाले टाइम में आपकी पढ़ाई का खर्चा होगा, शादी ब्याह का खर्चा होगा, and all that. So children, parents will have the habit of saving money. Yes or no? और ये शब्द आपने आज से पहले भी सुना है बच्चों. Keeping some profit, setting aside some money out of profit for meeting any known or unknown contingency, unforeseen event which may occur in future. पैसा बचा के रखो इसके लिए. It is known as appropriation. Is a process. It's a verb. The noun is reserve. किसी भी पर्पस के लिए बचा लिया तो जनरल रिजर्व, नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बचाया तो स्पेसिफिक रिजर्व. हमने तो सर सोचा था एक्सपेंस और इनकम की कहानी खत्म हो गई, हमें क्या पता था कि परिवार इतना बड़ा है.
अरे सिर्फ स्टार प्लस और सोनी वाले थोड़ा सीरियल 500 दिन चलाते हैं, हम भी चला लेते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? प्लीज अपडेट दिस फास्टली. So children, moving ahead next and starting the classification of incomes. Incomes का भी classification कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, titled as children, जैसे आपने पढ़ी in the category of expenses. कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो रोजमर्रा के बिजनेस में होंगी, एंड सम इनकम्स आर ऑफ सच नेचर जो आपको कभी कभी मिलेंगी. सुनाई पड़ गई बात? सो दोज इनकम्स विच अकर इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट इनकम्स. आई रिपीट चिल्ड्रन, कॉल्ड एज डायरेक्ट. और जो इनकम्स आपको प्रिंसिपली हमेशा नहीं मिलेंगी, दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट इनकम्स के लिए एक छोटा सा टेक्स्ट आप लिख लीजिए. प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज. मैकडॉनल्ड्स के लिए ईटेबल्स बेच के पैसा लेना, स्कूल के लिए आपकी फीस का पैसा, पीवीआर सिनेमास के लिए टिकट का पैसा, these all are children called as direct incomes. And in this category we have one income that is called as sales, or the American word to this is revenue. What? But जो incomes आपको कभी कभी मिलेंगी, हमेशा नहीं मिलेंगी, they are called as children indirect. and इसमें आपके पास सबसे पहली कैटेगरी है चिल्ड्रन ऑपरेटिंग इनकम्स की. एंड ऑपरेटिंग इनकम का आपको सिर्फ एक एग्जांपल मिलता है, द मोर क्विकली यू पे मनी, मोर कैश डिस्काउंट यू विल बी गेटिंग. द सेकेंड एग्जांपल इन दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ये इनकम आपको बिजनेस करने से नहीं होती. आई रिपीट चिल्ड्रन, ये इनकम बिजनेस करने से नहीं होती है. एग्जाम्पल्स कुड बी प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी तो रेंट मिल गया, बैंक में फिक्स डिपॉजिट ले लिया तो इंटरेस्ट मिल गया, शेयर्स किसी कंपनी के आपने खरीदे तो आपको डिविडेंड मिल गया. एंड द थर्ड इन कैटेगरी इज योर गेन्स चिल्ड्रन. यू मे हैव अ क्वेरी, सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4 तरह के थे तो इनकम क्यों नहीं होती 4 तरह की? इसमें पूरा दोष कंजर्वेटिज्म मौसी जी का है. Says what? Record anticipated losses, do not record anticipated gain या income. तो actual gain record होगा but anticipated नहीं. यहाँ पे actual loss भी record होगा depreciation के नाम पे, और anticipation के लिए पैसा भी बचा के आप रखते हैं. That's why appropriation conservatism के accordingly यहाँ पे appear होता है, but anticipated income आप record नहीं कर सकते. तो यहाँ चौथी कैटेगरी गायब हो चुकी है. समझ में आ गई बात? Heard well children? पक्का? चलिए. People may have a query कि सर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? हम बच्चों ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको पता लग जाए ईयर एंड में what is so called the financial status of the business. I repeat children, what is the financial status of the business? कैसे पता लगेगा सर? पता लगेगा नहीं, पता लग गया. कैसे? by seeing to the assets, liabilities and capital, and you will be recording this data in a statement children called as balance sheet. I repeat, called as balance sheet. और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका होता है to know how much is the amount of profit that the business earns or how much loss it has suffered. ये आपको कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा चिल्ड्रन by preparing what is called as a trading and PL account. तो I repeat, business ultimately ये जानना चाहता है
कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है या हमारा प्रॉफिट लॉस क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटस के लिए तो आप बनाएंगे व्हाट इज नोन एज बैलेंस शीट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए चिल्ड्रन आप बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इन दो रीजंस के लिए मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन पढ़ाया है। सुनाई पड़ गई बात? बिकॉज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही आप डेटा इसमें पुट कर पाएंगे। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स आपको नजर आ रही है चिल्ड्रन, दे अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट। सेमीफाइनल मैच है। देयर आफ्टर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स जो अपीयर हो रही है चिल्ड्रन, दे अपीयर इन पीएल अकाउंट। तो अगर आपको पता ही नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, ऑब्वियसली ट्रू, आप ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? सो जब आपको ये बात पता लग गई, एसेट्स का ब्रॉट डाउन हमेशा डेबिट होता था, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू पुट इट इन व्हिच कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज का ब्रॉट डाउन हमेशा क्रेडिट होता था, एक्सपेंसेस का ब्रॉट डाउन हमेशा डेबिट, इनकम्स का ब्रॉट डाउन हमेशा क्रेडिट। लेजर से आपने ये थ्योरी पढ़ी थी, बाद में हमने इसको लॉजिक बना लिया कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल ऑलवेज अपीयर इन द डेबिट बैलेंस कॉलम, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम्स विल ऑलवेज अपीयर इन द। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो जैसे वहां पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के अकॉर्डिंगली कंक्लूजन बन गया। एसेट में हमेशा आपने देखा, हर एसेट के अकाउंट में एवरी टाइम लेजर में ब्रॉट डाउन किस साइड पे आता था? एवरी लेजर अकाउंट ऑफ एसेट ब्रॉट डाउन किस साइड पे आता था? डेबिट साइड। तो आपने इसको एक लॉजिक बना लिया कि एसेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। गैस के ऊपर कोई भी सामान रखा है, 90% प्रोबेबिलिटी है गर्म ही होगा, ध्यान से उठाना है। ओके हमेशा एक्सपेंसेस के लेजर में ब्रॉट डाउन यूज्ड टू अपीयर वेयर चिल्ड्रन? तो इन दोनों चीजों से आपका लॉजिक बन गया कि इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और आप हमेशा ट्रायल बैलेंस ठीक ठीक बनाने लग गए। हमेशा लोन का अकाउंट हो, कैपिटल का अकाउंट हो, ब्रॉट डाउन किस साइड पे आया करता था? क्रेडिट साइड। सेल्स का अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड का अकाउंट, रेंट रिसीव्ड का अकाउंट हमेशा ब्रॉट डाउन किधर आता था? क्रेडिट साइड पे। तो जब आपने 2-4 बार लेजर से ब्रॉट डाउन को ट्रायल बैलेंस में लिखा, आपने लॉजिक बना लिया कि जो भी क्रेडिट में आ रहा है वो इन्हीं तीन में कुछ ना कुछ होगा, ईदर कैपिटल और लायबिलिटी और इनकम, और डेबिट में आ रहा है तो इन्हीं दो में कुछ ना कुछ होगा, ईदर एसेट और एक्सपेंस। वो लॉजिक क्लियर हो गया? अगला लॉजिक आपको ढूंढना क्या है बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंस एंड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल अपीयर इन ट्रेडिंग अकाउंट, indirect expenses will appear in PL, direct incomes will appear in trading account and indirect incomes will appear in PL account। एक बार ये आपको समझ में आ गया, जिंदगी में फाइनल अकाउंट्स में गलती करेंगे नहीं, और 12th क्लास में 99 से कम आएगा नहीं, क्योंकि 12th क्लास का पूरा सिलेबस चिल्ड्रन इसी कंटेंट पे बेस्ड है। आपने फाइनल अकाउंट्स ठीक से अगर पढ़ लिया 12th क्लास में नो प्रॉब्लम, नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, नो स्टडी नो प्रॉब्लम वाला नो प्रॉब्लम रहेगा। तो चॉइस इज योर्स, यू नीड टू मेक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास 12th क्रिस्टल क्लियर और ऑल क्लियर। समझ में आ गया? पक्का? सो प्लीज अपडेट दिस, देन वी कंटिन्यू फर्दर।